Okay, so children, let us see the first question. It is, how many numbers greater than 20,000 can be made from the digits using 0, 1, 2, 3, 4? No digit is being repeated. Very important question and very good question. See what is there. Question number 1, what is there? It is the digits. You have to make a number greater than 20,000. All right, greater than 20,000, and you have to use the digits using digits 0, 1, 2, 3 and 4. These digits I have to use. Now look here, how many places are there? I will write units place, I will write tens place, I will write hundreds place and thousands place. After that 10,000s place. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Now look here, number I have to make greater than 20,000. It means in this 10,000s place, what can I fill? I can fill any number out of these 1, 2, 3, 2, 3, 4. Out of these digits, I can fill here any number. So how many ways are there? There are 3 ways. 3 ways to fill this. And for 1,000 place, I can write any of these. See, look here now. Suppose I have written 4. Now, how many digits I have? I have 0, 1, 2 and 3. 4 digits are there and 1, 2, 3, 4. 4 places are there. This I can write 4p4. So my answer will be 3 into 4p4. This is my answer. And one more thing I can say, thousands place को I can fill by 3 ways. 10,000 place. Then 1,000 place में out of these 4 any one 4 into मैं क्या लिख सकती हूँ, hundreds place को fill करने के लिए I have 3 methods. Suppose कोई भी digit मैंने लिख दिया, suppose ये 2 use कर लिए, these 2 I have used, then 1 and then 2 and 1. ये these are the digits left I have. I can write either this way or this way also I can solve this. So this is the answer of the first question. Question number 2. It is, how many even numbers are there with the digits with 3 digits such that if 5 is one of the digits then 7 is the next digit. मतलब क्या है, अगर 5 है कोई तो 7 यहां पर आना है. 5 to 7 ये हमारा इवन नंबर हो सकता है. What is to do? 3 digit even number. I have to make 3 digit even number such that if 5 is one of the digits then 7 is next to it. So I have to make it even number. Then I will write here any of the 5 digits. See, look here. अब digit का restriction only for 5 and 7 I have given. So look here, I can write 0, 2, 4, 6 and 8. Units place, tens place and hundreds place. I will make a 3 digit number. How? Units place, tens place, hundreds place. Now I have a restriction. If 5 is there, then 7 must be there. And 1, 2, 3, 4, 5. 5 ways are there. Now look here, how I am going to solve. First case. Try to understand. 5 cannot be here. 5 यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि ये इवन नंबर है. यहाँ भी नहीं आ सकता. अगर 5 यहाँ पर आएगा तो यहाँ 7 आना है, तो भी ये इवन नंबर नहीं होगा. तो 5 यूनिट्स प्लेस. 5 कैन नॉट बी, हम क्या लिखेंगे, 5 कैन नॉट बी इन यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स एंड टेंस प्लेस. इन दोनों में से तो कहीं 5 हो नहीं सकता है. अब 5 कहाँ हो सकता है?
5 कैन बी इन हंड्रेड्स प्लेस, 5 सिर्फ हंड्रेड्स प्लेस पे हो सकता है. सी लुक हियर, इफ 5 इज इन हंड्रेड्स प्लेस, ये फर्स्ट केस है. कौन सा फर्स्ट केस है? हंड्रेड्स है, टेंस है, यूनिट्स है. 5 इज इन हंड्रेड्स प्लेस, तो 100 प्लेस को फिल करने का 1 वे. इनटू टेंस प्लेस में क्या आएगा? यहाँ 7 ही आना है, इसको भी फिल करने का 1 वे. एंड यूनिट्स प्लेस को फिल करने के हाउ मेनी वेज? 5 वेज. तो व्हाट इज दिस? दिस इज 5. दिस इज केस नंबर 1 when 5 is in units place. What is this case? This case is when 5 is in units place. Now come for second case. See, look here. ये तो कंडीशन हो सकती थी. अब सेकेंड केस क्या हो सकता था? 5 हमारे पास है ही नहीं. लाइक सी हम क्या लिख सकते थे? हमारा नंबर 7 to 4 हो सकता था. रिपीटिशन इज नॉट देयर, इज ऑलरेडी गिवन. देन द डिजिट्स, how many even numbers there are with the 3 digits such that 5 is one of the digits, then 7 is what? ऐसा कुछ नहीं है. रिपीटिशन के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है इसमें. रिपीटिशन के लिए कुछ नहीं लिखा है. तो 7 7 4 भी हमारे पास नंबर हो सकता था. हम क्या लिखेंगे सेकेंड केस में? इफ 5 इज नॉट देयर एट ऑल, 5 इज नॉट देयर, हमारे पास 5 है ही नहीं. 5 इज नॉट देयर. जब 5 होगा ही नहीं तो हंड्रेड्स प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस. हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने के हाउ मेनी वेज विल बी देयर? 8 वेज विल बी देयर. वाई 8 वेज? क्योंकि 0 एंड 5 ये दोनों तो है नहीं, तो कितने बचे? 8. एंड टेंस प्लेस में आई कैन राइट एनी डिजिट एक्सेप्ट 5. इस 5 के अलावा मैं कोई भी लिख सकती हूँ. 5 मुझे नहीं लिखना है. किस प्लेस में? टेंस प्लेस में. सो हाउ मेनी वेज डू आई हैव? 9. और यूनिट्स प्लेस के तो 5 ही वेज मेरे पास हैं. ऑलराइट, क्योंकि यूनिट्स प्लेस में तो 0 2 4 6 8 इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, बिकॉज इट इज अ इवन नंबर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज 360. टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? Total will be 360 plus 5. This is your answer. Total is, how much is total? Total is 360 plus 5. Alright, this is the answer. Okay, now come for the third question. It is, if the letters of word mother, if the letters of word mother are arranged in a dictionary with meaning or without meaning, right, all possible ways, by all possible ways, what will be the rank of word mother? What will be the rank of word mother? And what will be the 295th word? 295th वर्ड भी आपको फाइंड आउट करना है. सी लुक हियर, आपको क्या रखना है डिक्शनरी में? वर्ड मदर. इस वर्ड को आपने डिक्शनरी में रखना है. वर्ड मदर, दिस यू हैव टू कीप इन डिक्शनरी. अब डिक्शनरी में आपको आता है क्या होता है डिक्शनरी में? पहले ए से स्टार्ट होने वाले बी सी डी एंड सो ऑन, अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिक्शनरी बनती है. सो लेट अस ट्राई टू अरेंज द लेटर्स ऑफ वर्ड मदर इन अल्फाबेटिक ऑर्डर. तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ऑल द वर्ड्स, सी लुक हियर, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई. ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ई से स्टार्ट होने वाले, तो ई से स्टार्ट हो जाएंगे. कितने बचेंगे? MOTHR. हाउ मेनी? 1 2 3 4 5. तो ये कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल. ई से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल का मतलब 120. अब डिक्शनरी में अरेंज करना है तो लिख देखो, वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई के बाद क्या आएगा? H आएगा. स्टार्टिंग विद H, H में भी देखो 1 2 3 4 5. फिर से ये भी कितना है? 5 फैक्टोरियल. अगेन
120। देन ये एच आ गया, तो एच के बाद अब तो हमें एम में ही आना पड़ेगा। अब हमें एम में आना पड़ेगा, तो एम देखो वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम ई लिखेंगे हम। पहले एम ई वाले सारे आ जाएंगे क्योंकि एम ओ तक जाना है। देखो एम ई में अब कितने लेटर्स अरेंज करने पड़ेंगे, देखो एम ई हो गया, इसके बाद एम ई तो कंपलसरी हो गया, देन ओ टी एच आर, इतने ही बचे ओ टी एच आर। ठीक है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 24। एम ई वाले हो गए। अब कौन से, एग्जैक्टली सेम वे एम एच वाले लिखेंगे। वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम एच, मतलब कैसे वर्ड होंगे वो, ऐसे होंगे एम एच होगा, एम एच ई आर टी हो सकता है, ई आर ओ टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एम एच आएगा सारे वर्ड्स में। डिक्शनरी में देखना सारे वर्ड्स जो स्टार्ट होंगे वो एम एच से होंगे, तो वो भी कितने होंगे 4 फैक्टोरियल, ये भी 24 हो गए, एम एच भी हो गया। अब आएगा एच के बाद क्या आना है, अब तो हमारे पास ओ ही आना है। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम ओ ई, एम ओ ई। अब एम ओ ई देखो, एम ओ ई, एम ओ ई हमने रख दिया, तो बचे कितने, टी एच आर, एम ओ ई हमने ले लिया तो टी एच आर, ये बने 3 फैक्टोरियल, दिस इज 6। वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम ओ एच भी हमें ले लेना पड़ता है, एम ओ एच भी ले लेते हैं, एम ओ एच से लेंगे तो ये भी 3 फैक्टोरियल, अगेन 6, एम ओ एच भी हो गया। अब हमें एम ओ आर भी लेना पड़ता है, एम ओ आर, ये भी कैलकुलेट करने पड़ते हैं, ये भी 3 फैक्टोरियल, ये भी 6। ऑलराइट, इतने तो ये हो गए। अब हमें क्या करना पड़ता है, सी लुक हियर, एम ओ आर, अब हम आ गए एम ओ टी, एम ओ टी वाले, all the words you can say this, no this is not visible, here it will be visible here, all right, M O T वाले। अब all the letters, all the words starting with M O T। अब देखो M O T में M O T के बाद पहले आना चाहिए E, ठीक है, फिर आना चाहिए H और फिर आना चाहिए R, फिर M O T H E R, so we got the word। ये हम यहाँ पर पहुंच गए, देखो यही वर्ड हमारा चाहिए था और हम पहुंच गए। नाउ आई कैन काउंट, इन सबको काउंट करो, दिस प्लस 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 ये, दिस विल गिव यू रैंक ऑफ वर्ड मदर। लेट मी काउंट, ये कितना हो गया, ये हो गया 240, 240 एंड 30 और 30 60, 240 एंड 60 इज 300, 240 and 60, yes 300, 306, 307। so what will be the word, the rank of word mother will be, ये 308 हो गया था, 309th word, ये होगा 309th word, क्योंकि यहाँ पर ही आपका एक और बनेगा, देखो ये 309, ये वाला मेरा एक ये हो गया था ना, आर एच बी होगा एक वर्ड, तो रैंक ऑफ वर्ड मदर इज 309। एंड इफ आई वांट टू काउंट वर्ड, व्हाट विल बी द वर्ड, क्या बोला था, व्हाट विल बी द वर्ड 295th वर्ड। हमारे क्वेश्चन में ये भी है कि 295th वर्ड क्या होगा, 295th वर्ड मुझे फाइंड आउट करना है। ये सबको ऐड कर, देखो ये मैं कहाँ तक पहुँच जाती हूँ, ये है यहाँ पर 300 आ गया, यहाँ पर 300 आ गया ना, ये 300 आ गया, 300 यहाँ पर आ गया मेरे पास, इस पोजीशन में देखो 240, 240 एंड 48, 288, इस वर्ड तक पहुँचने में ये कितना है, 120 प्लस 120 प्लस 24, 24, दिस इज हाउ मच, यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ 288, 288 पहुँच गया। अब इसमें 6 ऐड कर देते हैं, तो 288 एंड 6 294, ओके 294। देन व्हाट विल बी द 295th वर्ड, ये होगा, ये
ये जो यहाँ पर आया होगा। देखो कितने वर्ड लिख दिए थे, अब बड़े ध्यान से देखना। 120 प्लस 120 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 6, ये हो गए 294। 295th वर्ड होगा MOH। अब डिक्शनरी में लिखना, H के बाद आएगा E के बाद आएगा R और R के बाद आएगा T। दिस विल बी द 295th word. Okay, so this is the answer.